अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। उलमा किराम दरदुल इल्हाद दरसुन रवान दी मगरिबी फ़िक्र फ़लसफ़ा बयानेगी। अल्हम्दुलिल्लाह उस पूरे मंगा तकरीबन 90 सफ़े वेली दी बदे कि मंगा मबादियात द इलम वेल्यू और दे सरा सरा मंगा द इल्हाद उसूल बयान करी तासु महता उस पूरे मंग अत उसूल बयान कलन हम नंबर असल में बयानो दा हम डेर अहम असल दे च द मुल्हिदीन द इतराज़ात नरुस्त बतासु फ़लसफ़ा पेजने रुस्त मगरिबी फ़लसफ़ा रा रवाना दागा बखटेट या दवैन तासु बयादा आसान वी तासु چې کلم بحث کوي تاسو خپلو کې تربیتی مجلس کوي تاسو ته پته کنه یو طرف نه تاسو جماعت چې نه تاسو ته پته لګي چې دا د پلانکی جماعت نمائندګي کوي دا د پلانکی ته سیده کنه دا نو تاسو ته به جواب کول اساني کچیر د تاسو ته معلومات نه کیږي چې دا د کم جماعت نمائندګي کوي ته ورته کم دلایل پیش کړي نو دا شان ته کې په مغربي فلسفه کې هم د اعتراضات او نوعیت جدا دي دی به په اسلام خزل حق نه دی ورکړي اسلام خزل برابرین نه ورکړي دا د فیمینزم په فلسفه په بنیاد کې څه یا په پیدایش د انسان اعتراض کوي نو دا د ایولوشن د وجه نه اعتراض کوي یا د کائنات د تخلیق دا د بیگ بینګ په وجه یا دغه شان ته کې د مساوات خبره کوي دغه شان ته کې د ازادي د ترقی د روشن خیالي د وجه نه نو دا فلسفه به تاسو پیژنئ څه به کوي نو د ملحدینو د اعتراضات او نرسته چې کوم فلسفه وي دا پیژندل ضروری دي چې کله به ته پدې تا ته پته ولګي اوس الحمدلله منګلا دونه پدې کې د دې د مناظرو سره د سره زموږ دونه الحمدلله یو وای خدای پاک موږ تر کړی چې د اعتراضو کې موږ ته پته ولګي چې لکه د دې علاج غلطه پروت دی لکه ته چې میډیکوز والا ته ورشه هغه ته وی چې پلانکی دوا را کاغه لچټ پټ راوالي هغه ته معلوم چې لکه په دې الماری کې دا دوايي پرته ده تاسو بد دي د اصل په بنا به تاسو پیژنئ د ملحدینو د اعتراضاتو نرسته چې کوم فلسفه ده ا فلسفه به تا مخکې نه پیژندلی نو تا ته به د ملحدینو د اعتراضاتو جواب ورکول اساني چې ته په سیکولریزم نه پیږي او تا باندې اعتراضات وکړي چې تاسو وایئ چې سیکولریزم کفري نظام دی چې دی کفري نظام خاصه کفري نظام د نوستا مشران په دیوبندیان ستا اسلاف په هندستان کې سیکولریزم غواړي زه به راځي فتوا په لګی چې دا دیوبندیان کافران دي داسې شوي دي موږ سره وایي زه اوسني دیوبندیان نه منم څه کوم خبر نه د فلسفې نه خبر نه راځي په خپلو اسلاف په کافرینو د کفر فتوی په لګی نو چې ته ورته ووایې چې بھائی د دې څه مطلب دی چې هغوی د سیکولریزم دا روس سره روان دی دا درس سره چې په هندوستان کې ولې علماء دیوبند د سیکولریزم تایید کوي موږ وایو چې دا کفري نظام دی دا هغه خپل وجوهات دي الته هیومنزم دی چې الته هندوئزم دی چې هندوئزم اصول دا دی یا به هندو کېږي یا به بل کېږي او د سیکولریزم دا نظریه ده که منې او که نه منې مذهب ستا خپل ذاتي مسله ده نو د مسلمانانو معاشره باندې خو سیکولریزم نافذ کول کفر دی خو په هندوئزم مقابله کې بیا سیکولریزم ښه مذهب دی ولې ښه دی عیسایان به په خپل مذهب عمل کوي هندوان به په خپل مذهب عمل کوي مسلمانان به نو رښتیا وایي چې ته د دې د سیکولریزم د دې فلسفې نه خبر اعتراض به څه شي مسله به حل شي او که نه په خپله موږ سره په دې ګروپونو کې ولکو په اسلافو باندې اعتراضات کول موږ ورته ویل ګوره ځان خبر کړل د فلسفې نه مسلمانه نو خبره دا ده چې د ملحدینو د اعتراضات نه وروسته څه فلسفه پیژندل ډېر ضروري دي وایي عبارت دې شروع کوم مولوي صاحب بسم الله الرحمن الرحیم असल नंबर 9 मुल्हिदीन के एतराज़ात के पीछे जो फ़लसफ़ा है इसका जानना बहुत ज़रूरी है मुल्हिदीन के एतराज़ात के पीछे जो फ़लसफ़ा है इसका जानना बहुत ज़रूरी है जब मुल्हिदीन एतराज़ करें तो आप देखेंगे कि वो किस फ़लसफ़े के बुनियाद पर कम फ़लसफ़े पर बिना था ना एतराज़ के दालकान संग कम दी दावली नश्ता यौ काओ पाखे दानोर बल बीमार दे हवा जर ज़कात मुल्हिदीन क्योंकि मुल्हिदीन का कोई नजरिया नहीं होता बल्कि वो मुख्तलिफ फ़लसफ़ों की वजह से इस्लाम पर एतराज़ात करते हैं सोना नन सबावा की मुल्हिदीन दे कि मुनकिरीन दा हदीस दा पस से एतराज़ के पे इस्लाम मुल्हिदीन फ़लसफ़े आज़ादी की वजह से एतराज़ करते हैं कि इस्लाम में फ़र्द की आज़ादी को दबाया जाता है शाबाश
मिसाल पे तौर मिसाल के तौर पर शरीयत के उसूल में इंसानी हुकूक और आज़ादियों को महदूद किया जाता है, जैसे कि पर्दा जो ख़वातीन पर फ़र्ज़ है, नमाज रोज़ा की फ़र्जियत और बाद दीनी हदूद जैसी चोरी कत्ल वगैरह मुल्हिदीन के मुताबिक उसूल फ़र्द की ज़ाती आज़ादी को महदूद करते हैं और इनके मुताबिक फ़र्द को अपने अकायद और वही आज़ादी दे सर सलब की जवाब इस्लाम में फ़र्द की आज़ादी एक मुतवाज़िन नज़रिया पर मबनी है। इस्लाम इंसान को इस बात की आज़ादी देता है कि वो अपने अकायद और अमाल का इंतखाब करे, लेकिन इसके साथ ही इसकी आज़ादी की हदूद भी है ताकि वो दूसरे के हुकूक को पामाल ही ना करे। हदूद मुकर्रर कड़ी दी दा सजागानी दी सर द नूर इंसानानु मंग हिफाजत करे दे का हर सड़ी ता आज़ादी वर के और आज़ी द बल कोर बवा नहीं दस दे दे सर द नूर इंसानानु माशरा सदा अगलत दगा तहफ़्फ़ुज़ मिलावी गया और माशरत में तवाज़ुन कायम रहे। शरीयत में फ़र्ज़ इबादत और अखलाकी उसूल इंसान के रूहानी और अखलाकी फलाह के लिए है, न कि जबर करने के लिए। की आज़ादी को अल्लाह के रास्ते में रह कर जीने की आज़ादी करार दी है। मुल्हिदीन साइंस के कवानीन से मजहब साबित करना चाहते हैं, बल दुई नजरिया मुल्हिदीन इस्लाम पर यह एतराज़ करते हैं कि इस्लाम में पेश करदा अकायद जैसे मौजज़ात, अल्लाह की कुदरत, जन्नत और दोज़ख वगैरह साइंसी हकीकतों के बरखिलाफ है और ये अकली तौर पर साबित नहीं किए जा सकते। मुल्हिदीन का कहना है कि कुरान और हदीस में बयान करदा मौजज़ात जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का समंदर का फटना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को जिंदा करना वगैरह साइंसी तौर पर नामुमकिन और ये महज तख़य्युलात या कहानियाँ हैं। अल-जवाब इस्लाम में अक़ल और ईमान का कोई तज़ाद नहीं। कुरान में बार बार इंसानों को अपने अक़ल इस्तेमाल करने की दावत दी गई है ताकि वो अल्लाह की तख्लीक़ को समझे और इसकी कुदरत की निशान दे के इस्लामी अकायद साइंसी नज़रियात से मुतसादिम नहीं है, बल्कि बहुत साइंसदानों ने कुरान के पैगामात और साइंसी हक़ाइक़ के दरमियान हम आहंगी को तस्लीम किया है। इस्लामी ईमान को अक़ल और फितरत के साथ हम आहंग समझता है। द साइंसी क़वानीन न मज़हब साबितउल खिलाफ़ अक़ल दी सिशदी संग खिलाफ़ अक़ल दी साइंस दसन बहस के द मादे न मज़हब द गैर मादी उमूर न बहस के प साइंस के ज़वन दे गुमान दे पाक़ीदा के यकीन दे गुमान नश्तरे प साइंस के तजर्बात दी पाक़ीदा के तासु कल तजुर्बे कड़ी प मुज़बानी ना लका प मुस दा सिशदी साइंस मफरूज़ा दा सिशदा अवाक़िदा दा अटल हकीकत दे साइंस त्योरी दा अवाक़िदा त्योरी न दा साइंस बदलेगी रा बदलेगी अवाक़िदा कम अक़ीदा से पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर क़यामत तर क़यामत ज़मीन द मुसलमानान हुई तो द साइंस द क़वानीन न मज़हब साबितउल खिलाफ़ अक़ल दी सबब वही दे चिकल द साइंस द मज़हब तब औरतों च साइंस तरीक़े कार जुदा दे द मज़हब तरीक़े कार जुदा दे द सर द देवबल सर स तज़ाद नश्तर साइंस कल द मज़हब ने इनकार करे दे तब औरतों साइंस कल द मज़हब ने इनकार करे यार साइंस को तजर्बात होता हुआ तजर्बात कल कामयाब है कल नाकाम हो बाक़ीदा की कामयाबी और नाकामी नहीं अक़ीदा की हमेशा कामयाब वाले दे कम खल कुछ द वक्त पैगम्बर खबर मन दा कामयाब तीर शुवी दी फ़िरऔन द वक्त पैगम्बर खबर न द मन अल्लाह वेल फलयौम नुनज्जीका पे बदन का ज़बदे बशरमुनो शर्मो मागा दे इबरत निशान अल्लाह कर ज़ौले दे नमरूद अंदाज़ वाला क़ारून अंदाज़ वाला दे द वक्त पैगम्बर कौम आद वाला कौम समूद वाला दे द वक्त पैगम्बर मुकाबला का वाला ताकतवर खलकू कोई शुए दोस्तानों मतलब सॉरी नो द वक्त पैगम्बर कम कौमुनो च द वक्त पैगम्बर खबर बाक़ीदी खिलाफ तले वगैरह दुनिया ने नाकाम तले दी खा बल जवाब मुल्हिदीन का एतराज़ है कि इस्लाम में अखलाक उसूलों को एक मुतला हाँ जवाब इस्लाम में हक़ और ईमान का कोई तज़ाद नहीं। कुरान में बार बार जी मुल्हिदीन फ़लसफ़ा ख्वाहिशात की वजह से इस्लामी कौन हाँ उस ख्वाहिशात दिनन सबा वक्त की हर यो कस इल्हाद तरफ रवान दे दा सद वजन रवान दे ख्वाहिशात द वजन हाँ मुल्हिदीन का एतराज़ है कि इस्लामी अखलाक उसूलों को एक मुतलक मेयार के तौर पर पेश किया जाता है जो फ़र्द की आज़ादी और ज़ाती तशरीहात के ख़िलाफ़ है। इस्लाम में हलाल और हराम की वाज़ेह तफ़सीलात दी गई है, जैसे कि सूद का कारोबार हराम है, शराब पीना हराम है, सूद हराम दे लेकिन नन सबादा मुनकिरीन दा हदीस दा मुनीर शाकिर और दई दा डला मुत्तबीन क़रीब बरकत दई वही सूद जायज़ दे से दे जायज़ वही सूद ता कड़े दे मा खुना दे कड़े बैंक की उस्ता पैसे प्रति दे मुंग तेरा लेगा दा हराम उखल को उस हराम वाली दोस्तानों। मुल्हिदीन के मुताबिक ये जाबिराना अखलाकी उसूल इंसान की ज़ाती आज़ादी को महदूद करते हैं और इनकी फितरी ख्वाहिशात की मुखालफत करते हैं। जवाब इस्लाम में अखलाकी उसूल इस्लाम में अखलाकी उसूल अल्लाह की रज़ा और इंसान की फलाह के लिए है और इनका मकसद माशरत में इंसाफ बराबरी और फलाह को फ़रूग़ देना है। इस्लाम में अखलाकी मेयारात सिर्फ फ़र्द की फलाह के लिए नहीं बल्कि पूरे माशरत के लिए है ताकि माशरे में फसाद दरअनार के ना हो।
शरीयत में अखलाकी उसूल एक तवाज़ुन पैदा करते हैं जहाँ फ़र्द के ज़ाती आज़ादी को दोस्तानो कसूद हराम दे पद की दोस्तानो द माशरे नुकसान दे वली सुद सुदखोर सड़े बलालची भी सभी सुदखोर सड़े बलालची भी द नूर पर नुकसान के बदले फायदा भी दाब फी सबिलिल्लाह चाहता कर्ज सनम न वर के दा पूछो इंसान सोना गरीब की जमा पके पैदा लालच हिरस शहवत परस्ती द सुदखोर माल वरस पर ज्यादती की और गरीब गुरबत वरस पर ज्यादती की दागा शांत के दोस्तानो हराम माल दे दा से शराबून और दानूर शिजून जी मुल्हिदीन द सेकुलरिज्म पर जमाने तराजात के मगरबी माशरत में सेकुलरिज्म का नज़रिया गालिब है जो मज़हब को रियासती उमूर और आमी ज़िंदगी से अलहदा करना चाहता है कि आओ बात अलहदा करने की बात करता है गोरा सेकुलरिज्म दा इस्तिलाह जॉर्जी क्यूब मुंतखब करे चा जॉर्जी क्यूब और दा 1851 की रुस्तरा रवान दे तफसील सरा बदा की तास बहुरे नो देवेले च फस द सेकुलरिज्म तारीफ दार फस्ल दीन अन दौलत जुदावाले द मजहब द हुकूमत ना मजहब बजान लकारी औ दौलत बजान लकारी हुकूमत निजाम द हुकूमत ब इंसानान द खपल अकल पर बिना बाने फैसले कई औ मजहब बस्ता द इनफरादी जिंदगी पूरी महदूद हुई ए मौलवी साहब तो जुमात के किए न 15 वक्त मुझ कवा मा तब बाहर न रहो जी मा तो कारोबार दा हलाल दे दा हराम दे दा बदा अकल पर बिना तल की दा हलाल दे दा हराम दे दा जायज दा नाजायज नो अगवी सेकुलरिज्म दा چې मजहब ستا انفرادي مسله ده دا به اجتماعي معاملاتو ته نه راولي دا د سیکولرزم خلاصه ده په دې وروسته ټول تفصیل تاسو ته بیانېږم जो मज़हब को रियासती उमूर और आमी ज़िंदगी से अलग करने की बात करते हैं मगरबी माशरत में मज़हब के अक्सर असरात को कम से कम करने की कोशिश की जाती है ताकि फ़र्द की आज़ादी को ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिल सके मुल्हिदीन का यह एतराज़ है कि इस्लामी दीन और दुनिया के मामलात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं गोरा ज़मंग द इस्लाम दीनी और दुनियावी ज़मंग इस्लाम यो दसी तहज़ीब दे छिपकी पद की द दिन और द दुनिया द्वाणो मुताबिकत मौजूद दे ला रहबानियत फिल इस्लाम दा नश्त शि कारोबार प्रेद ना तब कारोबार हम के जापान के वक्त सिर्फ पदी मुसलमान से अगर शहर मा द मुसलमानों दा जवानों का तो दुई खपल दीनी मामलात दीनी मजहब दीनी चिकम द दे चिकम मजहबी इबादत दाम के इबादत दुई उलमा इकराम वो जमंग दा बुदयान ची दी अगोई द दुनिया कारोबार न कई अगई द दुनिया न बस तरफ थी अगर पदे बार ईमान न उड़ो जो अल्लाह इस्लाम पाक मजहब दे अब मजहबी इबादत के हम बजान द हलाल रिज़्क़ गटे नो दा अल्हम्दुलिल्लाह गुरदा जमंग मजहब इस्लाम द अकल मुताबिक दे छे द इंसान द फितरत मुताबिक दे अल्हम्दुलिल्लाह टूल व शुक्र दे अल्हम्दुलिल्लाह और मुसलमानान ही हो और रियासती मामलात में भी इस्लाम के उसूलों की पैरवी की जाती है इनके मुताबिक जमंग द इस्लाम कानून दादे से तब शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निजाम रावली तब सके पागे ब फैसले के खुद बदा मरगा जमंग सिर्फ आइन की बस प्रोत दे दा इस्लामी दे ब देवाल दे कलिमा लिखले द हो अमल पे नशी कवले खुदा दा वखरा वाली ची बदे बारे मंगा अमल मुको तो जानो हां इनके मुताबिक इस्लामी दीनी हुकूमती उसूल जैसे कि खिलाफत शरीयत का निफाज फ़र्द के अफरादी और माशरती तरक्की के रास्ते में रुकावट है जवाब इस्लामी दीन और दुनिया का ताल्लुक एक मरबूत और अहम आहंग निज़ाम के तहत है अखलाकी माशरती और इक़्तिसादी मामलात अल्लाह की रज़ा के मुताबिक तरतीब दी जाती है इस्लामी हुकूमत का मकसद माशरत में अदल इस्लामी हुकूमत मकसद चीज़ है प माशरे की अदल वाली इंसाफ बरावली फलाह बरावली और ये रियासती उमूर में फ़र्द की आज़ादी को तवाज़ुन के साथ तहफ़्फ़ुज़ देती है मुल्हिदीन फ़लसफ़ा मसावात की वजह से एतराज़ करते हैं फ़लसफ़ा मसावात द वजह से एतराज़ात के पे इस्लाम के दासी पाबंदियां निवली दी हालांकि इंसान को आज़ाद होने की ज़रूरत है ये तो मॉडर्निज्म द फ़लसफ़े मसावात पर बिना बने दो एतराज़ात के क्योंकि आज़ादी का फ़लसफ़ा मसावात के शाह है कि हर इंसान को आज़ाद होना चाहिए मॉडर्निज्म का फ़लसफ़ा आज़ादी मसावात और तरक्की है जवाब इसके जवाब में हम इसको बताई गई कि इस्लाम को मसावात का दर्स नहीं देता बल्कि इस्लाम द मसावात को खबर है कि इस्लाम द इंसाफ इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर अल्लाह ताला मंगल द अदल और द इंसाफ खबर कि दा मसावात मंग पे महकम खबर कड़े बाज जैनु की जुल्म गर्जीगी द दुनिया द टोलो न सह कार च दा द माईशत कार दे दा द खपल वतन दिफा दा द टोल द सड़ो पो हां उगो बांधे चौलियो दा जिम्मेवारी पर सड़ो दा और द टोलो की आसान कार दे पकोर की द खपल औलाद तरबियत कोल द कोर जिम्मेवारी पर कोल दे खजुल अस्पार लेदा दे वही च मसावात पकार दे खजम राव बास सो की मंगसरा प मिलुनो की कारुनो की मंगसरा ड्राइवरी की मंगसरा दुकानदारी की मंगसरा रिक्शा चले मंगसरा
زمینداریو کې د کانیو کې د یورپ ښځې کوي که نه د یورپ دا ښځې راویستلې اوس یورپي ښځو له داسې د مسلمانانو په شان کې خاوندان نه ملاوي چې دا کور کې کېنئ لکه زمونږ په مسلمانانو کې ابه ډېر غټ دلی د اوس به چا به په ښځه پیسې ګټي لیکن نور ټوله ذمواري زمونږ د سړو په سر ده دا ګوره د اسلام یو حسن دی د اسلام یو ښایسته تهذیب دی چې ښځه د بچي تربیت وکړي همدا ښځه ده چې دا تا سره دکانداري مو کوي بیا دا ستا د بچو تربیت کولی شي دا به تا ته ډوډۍ پخولی شي دا به ستا ته کور کړي راحت ملاوېدی شي نه غریب هم ستړی ستومانې او ته هم ستړی نو هغه یورپ ژوند ته تاسو وګورئ دوستانو نو دا مساوات اسلام نه خوښوي اسلام تا ته د عدل او د انصاف درس کوي دا خبره صحیح ده چې د ښځې د څه حق دی هغه ورکړه د مور چې د څه حق دی مور لی ورکړه چې د خور د څه حق دی خور لی ورکړه چې د رور د پلار د استاذ د معاشرې او د جامعې او دا د عقل مطابق ده دا خبره د یورپ دا فلسفه د مساوات هم ده عقل نه خلاف ده دوستانو बल्कि इस्लाम इंसाफ का दर्ज देता है कि हर मखलूक के साथ इंसाफ करो हर किसी को अपना हक दे दो हर मखलूक के साथ मुनसिफाना सलूक करो औरत का जितना हक है इतना इसको दो बच्चों का जितना हक बनता है इसको इतना दो हर किसी का जितना हक है बनता है इतना इसको देना चाहिए आपको मगरबी फ़लसफ़ा मालूम करना होगा और इस फ़लसफ़े के मुताबिक जवाब देना चाहिए जब भी मुल्हिद एतराज़ करेगा और आपको वो फ़लसफ़ा मालूम होगा तो जवाब देना बहुत आसान होगा लिहाजा मुल्हिदीन के एतराज़ के पीछे जो भी फ़लसफ़ा है इसका जानना बहुत ज़रूरी है मुल्हिद जिस फ़लसफ़े से मुत्तसिर है वो इसे एतराज़ करेगा जैसा कि वो कहते हैं कि जिस तरह मर्द को तलाक का हक हासिल है औरत को क्यों हासिल नहीं سړی ته خو طلاق حاصل دی چې ښځې له ورکړي او ښځې له حاصل دی او چې ښځې مې ویلې چې یو دوه درې نو څه دی خیال یم هېڅوک به هم نه وی پاتې شیخ صاحب د الله جنتونه ورکړي هغه به نه ویلي که داسې ښځو له نو ښځې خو جذباتي نثار ماښام به خاوندان طلاق کولې موږ به هغه نکاحګانې هم خلکو له تړلې بل کار به هم نه کولې ښځې له حق ورکړی دی ښځه به څه وکړي عدالت ته به لاړه شي یو دوه مسلمانان به فیصله وکړي چې دې ښځې سره ظلم کېږي نو ښځې له خو حق ورکړی دی خو داسې نه دی چې دا یو دوه درې اوس وخت کې به دغه ته به ځې که نه های کورټ ته به لاړ شي وایه زر زر شابه دغه ته به ځې عدالت ته به ځې شرعي عدالت ته لاړ شه که نه तो इस बात पर बात करेंगे मर्द और औरत के दरमियान मसावत का ये उसूल किस जगह से आया है मर्द और औरतों के दरमियान मसावत का फलसफा अच्छा है या बुरा है कि दोनों में मसावत होनी चाहिए इस्लाम कहता है हर किसी के साथ वो मामला होगा जो इनके ज़हनी और जिस्मानी अंदाजे के मुताबिक हो औरत को अल्लाह ताला ने कमज़ोर पैदा किया है जिसके जिस्म के मुताबिक इस्लाम ने इस पर जिम्मेदारी डाली है और मर्द का जिस्म मजबूत है तो मशक्क़त वाला काम इसके हवाले किया है इस्लाम ने मशक्क़त वाला काम सारा काम मर्द के सपुर किया है ये इसलिए कि मर्द का जिस्म मजबूत है और औरत को आसान तरह की जिम्मेदारी सपुर की है वो घरेलू निज़ाम और ख़ानदान की कफ़ालत करनी है बाज़ औक़ात मसावत जुल्म जोड़ेगी बाज़ वक्त मसावत पर इस्लाम के अदल दे मसावत नश्ता दा वली मौलवी साहबानो जवाब मसावत की बिना पर अदल नहीं किया जा सकता इसलिए मसावत पर बिना त अदल नशि कौले मसावत रागे खो बस बिया बद यो शान बवी बिया मसावत न बिया अदल पर की न कीगी दोस्तानो शाबाश इसलिए कि मसावत का तकाजा कि हर इंसान के माबैन बराबरी कायम की जाए तब मसावत कानून दार है पर हर जगह पर बराबरी रावली हर जगह पर बराबरी रावली मसावत बाज़ जगह जुल्म बन जाते हैं जिन लोगों ने नारा लगाया कि मर्द औरत के माबैन कौन सा फ़र्क है उन्होंने मर्द और औरत को बराबर कर दिया है हत्ता कि कम्युनिस्ट कम खलक दी देवई च पे हाकिम और महकूम की सा फ़र्क दे ये मुमकिन ही नहीं कि कोई एक दूसरे पर तसल्लुत रखे और हुक्मरानी करे हत्ता कि वालिद और बेटा भी वापस दुई बारी न दे मुसल्लत पर दुई की मसावत था एलन मार्क्स द टोलो नगट मालदार दे कने दे नो दा मसावत छु बिल गेट उस पूरे अव्वल नंबर बानी दा मसावत छु डोनाल्ड ट्रम्प څنګه VIP ژوند تیری بلټ پروف گاډو کې ګرځي دا مساوات شو ورشه داغه هغه امریکا کې خلک په فوټپاتونو باندې ود کېږي شپې کوي مساوات زمنګ په معاشره کې دا حضرت عمر رضی الله عنه زمانہ دا او ټول ته په یو شان انصاف سره څه کېږي د بیت المال نن حصہ ملاويږي نشته زمنګ اسلامي نظامونه خدای دې راولي چې ته به وګورې چې به تا مساوات به مسلمانانو خې لیکن اندر ته بیا منګ سکو د ټولو مسلمانانو په منځ کې منګه بیا سکو د انصاف فیصله وکړو دوستانو والد को अपने बेटे पर भी तसल्लुत और ताकत नहीं है इसी तरह आगे बढ़े और समाज के हर तरतीब को दरहम बरहम कर दिया इस्लाम चूंकि दीन फितरत है इस्लाम का कोई कानून अकल के खिलाफ नहीं इस्लाम फितरत दे दोस्तانو دا د انسان ضرورت दे फितरत इंसान फितरत ته ضرورت لري دوستانو د اسلام یو قانون هم د عقل نه د خلاف شابه यही वजह है कि इस्लाम ने अपने निज़ाम हयात में इंसानों के लिए मसावत से बढ़कर जिस चीज़ د مساوات نو اوچت څه دی عدل او انصاف د چاغه قائم کړی دی ګور په دې فلسفه چې نه خبر اوس ته په دې ځان خبر کا دا بیان کا مسلمانانو ته په جمعه کې درس کې
خلک وایي چې والله مولوي صاحب خدا دی دا نور خو ټول جاهلان دي خلک به الله سنت خپل شابس او عدل دا خو چې دا دوه درې ټکي د انګریزي یو لګون ته کې دغه کې دا پړه لیکا دی چې دی او نور دا بجلیګر مولوي صاحب خبره کنه موږ ته قال الله قال رسول چې څوک وي دا چې دي موږ ته څه جاهلان وي چړې ها زمخ الله پاک نے انسان کو عدل و इंसाफ से किसी पर जुल्म होने का अंदेशा नहीं है। अल्लाह पाक ने इंसान को इसी काम का मुकल्लफ बनाया है जैसे जिसकी इसी ताकत बख्शी है, यही इसका अदल है। इसी अदल के फार्मूले को सामने रखते हुए इस्लाम ने मिराज का कानून तो ये क्या है, इस्लाम ने औरत और मर्द के बाद में फ़र्क रखा। इस्लाम ने मर्द को अपनी बीवी का कफील बनाया कि वो सिर्फ नाजुक है, इससे बाहर के शदीद शकील काम नहीं हो सकता। सहकार द कोर न बार कार दरमाने न देखे इस बाहर इसकी इज्जत व आबरू को او ځکه چې بار دا اوسه د خلکو د هوس د نظر ښکار کیږي بدل وی کور کی په عزت سره کینا लिहाजा उसे घर में ही मलिका बनाकर घरेलू काम काज तक महदूद रहना है और मर्द को इसके नाम और नफका का जिम्मेदार बना दिया। यहाँ यही इंसाफ है, यही अदल है और इससे बेहतर इंसान के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। कुरान में है अल्लाह तुमको हुक्म देते कि अमानतों को अमानत इनके हवाले कर दिया करो और जब लोगों में फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला करो। अल्लाह तुम्हें बहुत खूब नसीहत करता है, बेशक अल्लाह सुनता देखता है। सूरह निसा आयत नंबर 58। दूसरी जगह शायद रब्बानी है, बेशक अल्लाह ताला अदल और ihसान इख्तियार करने का हुक्म देता है। सूरह नहल आयत नंबर 90। एक और जगह अल्लाह का फरमान आलिशान है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हारे साथ अदल करूं। सूरह शुरा आयत नंबर 15। इन आयत बयानात की रोशनी में मालूम हो गया कि इस्लाम ने मुसावात का नहीं बल्कि अदल और इंसाफ का हुक्म दिया है और अदल और इंसाफ ही दुनिया के लिए खैर और भलाई का जरिया है। जहां अदल नहीं होगा बाकी इस कदर भी मुसावात چې کوم ځای کې عدل نه ویل ته مساوات کی खुलासा मुल्हिदीन मगरबी फलसफों के बुनियाद पर इस्लाम पर एतराज़ात करते हैं। د مغربي فلسفو په بنا باندې دوی په تاسو اعتراضات کوي د لپته ولګي چې ملحدین اعتراضات د کم ځای راخلي ها جی د مغربي فلسفو د وجنا مستشرقینو نه د عیسایانو نه د ټولو نه راخلي او په منګ اعتراضات کوي چا چې په منګ اعتراض کړي حق اعتراض علی خدا ته وفات چې دا اعتراض د چا دی जिनका ताल्लुक फ़र्द की आज़ादी अकल पसंद अखलाकी मेयारात और साइंसी हक़ाइक़ से होता है। इन एतराज़ात का मकसद इस्लाम को एक पुरानी और जाबिराना मज़हब के तौर पर पेश करना होता है जो फ़र्द की ज़ाती आज़ादी को दबाने के लिए है। ताहम इस्लामिक मुतवाज़िन और हम आहंग निज़ाम फराहम करता है जहाँ फ़र्द की आज़ादी को माशरती इंसाफ और फलाह के साथ हम आहंग किया जाता है और साइंसी तरक्की और अकल को ईमान के साथ जोड़ा जाता है। इस्लाम में दीन और दुनिया का रिश्ता इंसान की फलाह और माशरती तवाज़ुन के लिए है, लगे जबर के लिए دا ډېر اهم اصل دوستانو نه هم اصل دا مونږ ویلو چې د ملحدینو د اعتراضاتو وروسته چې کومه فلسفه وي دا به پیژنئ. اصول مناظره تاسو شکر دی مفتی صاحب محترم تفصیل سره ویلې ده د دې ضرورت نشته دی صحیح ده که نه دا به تاسو ځان سره واړوئ او را روان دی صفحه نمبر 102 دعوه او جواب دعوه د ملحدینو سره دا به راواړوئ صحیح ده دا به انشاءالله بیا سبا وایو خو هم ده ان شاء الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.